सबसे पहले तो यहाँ पे आए जितने भी मीडिया के हमारे साथी हैं उन लोगों को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सस्पेंडेड स्टूडेंट्स और ऑल ऑर्गेनाइजेशन हु आर रियली कंसर्न ऑन दिस इशू, हम आप सब लोगों को थैंक यू, वी लाइक टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। और टू जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट कि आज प्रेस मीटिंग क्यों बुलाया गया है, तो आप सभी को पता ही होगा कि पिछले जो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में जब वाइवा वोसे का मार्क्स को 15 से लेकर घटा के 30 से 15 घटाने के मुद्दे पर, फी हाइक का जो मुद्दा उसको लेके, माइनॉरिटी डेप्रिवेशन पॉइंट्स उसको लागू करने के मुद्दे के लिए एक प्रोटेस्ट हुआ था। और जिस प्रोटेस्ट में कहा गया कि जो प्रोटेस्टर थे, जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को कहा गया कि दे एक्टेड इन डिसरप्टिवली, दे एक्टेड, दे इंडल्ज इन वायलेंस, ये सब करके उनको विदाउट एनी इंक्वायरी सीधा उनको सस्पेंड किया गया, एकेडमिकली डिबार किया गया, और साथ ही साथ जितनी भी हॉस्टल फैसिलिटीज़ वो भी विड्रॉ किया गया। सो अभी इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन वेयर यू गिव वर्डिक्ट बिफोर इंक्वायरी, वेयर एज इफ यू सी नजीब के केस में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जहाँ पे एविडेंस है, आप मतलब वहाँ पे फैकल्टी तक एविडेंस है, जेएनयू से एविडेंस है, वहाँ के कॉमर्स स्टूडेंट्स एविडेंस है, फिर भी उसके बाद आप एबीवी के स्टूडेंट्स को 2 महीने तक आप कोई पनिशमेंट नहीं देते, उसके बाद भी पनिशमेंट के नाम पे सिर्फ आप हॉस्टल ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब SC ST OBCs और जो माइनॉरिटी जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जब अपना बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए डिमांड करते हैं, बिकॉज इवन सुप्रीम कोर्ट सेज दैट कि वाइवा वो से मार्क्स शुडंट बी ग्रेटर देन 15, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अगर चीज़ों को डिमांड करने पे वी सी हाउ विदाउट इंक्वायरी वी हैव बीन टारगेटेड, वी हैव बीन विच हंटेड। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में वी लाइक टू प्रेस को हम एड्रेस करना चाहेंगे। एक प्रेस हम लोगों ने रिलीज किया है, सबसे पहले तो मैं उस रिलीज को पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद बैक टू बैक आपका जो भी क्वेश्चन है वी लाइक टू एड्रेस इट। We the undersigned students of JNU wish to bring it to the public notice through media that the blatant violation of procedural norms and discriminatory witch hunting of the students belonging to marginalized and oppressed communities, SC, ST, OBC and minorities is being done by the Proctor's Office of Jawaharlal Nehru University. The Proctor's Office has adopted the vindictive and arbitrary method of slapping students with suspicion notices on false and trumped up charges. Given the way JNU administration have acted with utter disregard to the democratic procedures of inquiry and fact-finding and serve notices of academic suspension and hostel facilities being withdrawn overnight, it is clear that it is a case of false framing and witch hunting of students belonging to various deprived and oppressed communities who are peacefully demanding a more equitable and socially just admission process. Funnily enough, on the one hand, the notices sent by the Proctor Office accuses us of disruption of the Academic Council meeting and resorting to physical violence on 26 December 2016. On the other hand, according to the statement and the press released by the VC's office, the Academic Council meeting was conducted and successfully concluded on that day. So there is a contradiction. One, if you see the VC's version, it says, press release says ki meeting was already concluded. In proctoral notice, we have said that we have disrupted the meeting. So there is a contradiction within two official versions of VC's statement. The statement released by the VC, office after the AC meeting contradicts what we are accused of by the Proctor's office. That is a disruption of AC meeting. When AC meeting was already concluded, how can we disrupt it? How can we possibly disrupt the AC meeting if it was already successfully concluded? The falsity and the baselessness of the charges against us is there for all to see. We had been peacefully demonstrating outside the venue of AC meeting. Our main demand was the upper limit of Viva Voce marks should be brought down from 30% to 15%. In accordance with the recommendation of Professor Abdul Nafe Committee, constituted by JNU administration itself in last academic council, which found rampant discrimination against students from marginalized background in the interview test for the admission to MPhil and PhD in JNU. We wanted the AC to discuss and implement the scheme. Even the Supreme Court of India has issued guidelines that the upper limit of Viva Voce marks cannot be more than 50% of entire marks. This was all the more urgent because we have been testified by the number of faculty members in news and social media. The VC reportedly conducted these AC meetings in unabashedly high-handed manner, and we did not want the issue of Viva Voce marks to go unaddressed. Despite repeated requests made by the student present there, the security officers at the gate denied us all the possible routes of communication to academic council. The security personnel refused even to deliver our memorandum to AC meeting. Some of the student officers started pushing and shoving us.
The top official of JNU Security Office, which is G4S, and the security personnel manhandled us at the entrance of the convention center. Rather, it's the opposite way. Rather than we creating a disruption, it was the security, which is G4S in this case. They acted, they manhandled, they intimidated the students who were just willing to submit the memorandum. The AC meeting has already concluded before we peacefully entered. And when we entered, only we found that the auditorium gate is open. We were only raising slogans without resorting to any undemocratic means. I don't know in which country like raising slogan acts to the act of violence. It amounts to act of violence, except this country and this space. We also emphasize that we do not indulge in any kind of physical violence as claimed by Proctor Office. With Rohit Vemula of HU fresh in our mind, the suspension notice to the students from marginal background who are earnestly striving for a university, for an education which is accessible for all, are sad and a cruel testimony to the injustices which plague our society. Even in the recent case of Najib Ahmed, a student from minority community who was subjected to the mob violence inside campus and then mysteriously disappeared, the Proctor Office refused to take any disciplinary action against the culprit despite several depositions. There were 30 depositions. An eyewitness's account of the violence that transpired on the night of 14 October 2016. The Vice Chancellor has invoked the statute 32.5, 32(5) of university to order our academic suspension and hostel facility with immediate effect. In Najib case, Vice Chancellor refused to take any action on the perpetrator of group violence, saying that without inquiry, he cannot take any action, but in our case, he took a decision overnight. So there is a discretion, like when it's issue of ABVP, which is like a student wing of RSS, they follow the course of justice, where it's like you are innocent till proven guilty. But in our case, when we are from minority and oppressed section, we are already guilty. Now we are facing Proctor inquiry where we have to prove that we are innocent. The incident took place 26 December 2016 and we were served the suspension notice on 27 December morning. We want to point out to your office that how Vice Chancellor himself is acting in a dual manner. It indicates a serious inconsistency in the functioning of the office he is holding. We strongly demand that the JNU AC meeting be reconvened again and conducted in a fair and a democratic manner on or before 11 January 2017 and implementing the following demands which we are raising like in the last academic council, for which we have been punished with this action. Reduction of Viva Voce marks from 30 to 10. Implement Professor Abdul Nafi committee recommendation and implement minority deprivation points. Revoke fee hike in admission process. Immediate withdrawal of suspension order slapped on 11 students from oppressed communities. Implement SC, ST, OBC reservation in faculty post and direct PhD. Punish all faculties who have written the dossier in which especially students from Northeast are said to be terrorists and indulge in secessionist activities, and the female students and particularly the students from Northeast are said to be involved in sex racket in this campus. Thank you from on behalf of all students, we like to thank you for being present here. If you have any specific queries, you can ask now. दो तीन बात, एक तो जो नोटिस थमाया गया है हम लोगों को, उसमें सिर्फ एकेडमिक्स और हॉस्टल से सस्पेंशन नहीं है, उसमें ये भी लिखा गया है कि इन 11 स्टूडेंट को जो भी शेल्टर देगा, जो भी रखेगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। मतलब आप सोचिए कि मैंने किस तरह से अनटचेबल प्रैक्टिस, जो छुआछूत का प्रैक्टिस इस देश में कास्ट के बेस पे होता रहा है। सारे हम लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटीज, दैट मीन्स मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, उनको रखने वाले लोगों को सज़ा होगा। यानी कि हम लोग एक तरह से अनटच हैं इस कैंपस में। ये नए तरह का जो कास्ट प्रैक्टिस है, जो छुआछूत का प्रैक्टिस है, ये वाइस चांसलर इस कैंपस में उसको इस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है। दूसरा ये बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो अभी आया भी कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम प्रोक्टोरियल इंक्वायरी चलाएंगे और नोटिस में लिखा गया है फाउंड गिल्टी, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वाइस चांसलर एक्चुअल में ये क्या करना चाह रहा है इस कैंपस में, इसको समझने का हमको लगता है कि मीडिया के थ्रू हम जो भी हमारी बात जा रही है इनको समझने का ज़रूरत है। दो बातें और हम कहना चाहता हूँ कि
इस जेएनयू के अंदर एक तो जैसा साथी वीरेंद्र हमारे कहा कि जिनको नोटिस दिया गया है कैंपस से बाहर किया गया है, बाहर ही नहीं किया बल्कि उनका एक तरह से सोशली बाइकआउट भी किया गया है कि कोई उनके साथ मिल नहीं सकता है, कहीं किसी के रूम में वो रह नहीं सकते हैं। एक बात तो ये है कि किस तरीके से न्यू फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नए तरह के जातिवाद का जो नया तरीका है वो इंस्टीट्यूशनल तरीके को यहाँ लागू किया जा रहा है। दूसरा, जेएनयू दो तरह के जो है फासिस्ट अटैक को झेल रहा है। एक कम्युनल अटैक को झेल रहा है जिसको थोड़ी दिन कुछ महीनों पहले हम लोग नजीब के केस में देखे। दूसरा जो इस आरएसएस और बीजेपी का जो कास्टिस्ट अटैक है जो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, जिसको हम 11 स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। अभी कम्युनल अटैक को नजीब केस से हम निकले नहीं थे, नजीब अभी तक इस कैंपस से वापस नहीं आया है। दूसरी तरफ तमाम जो मार्जिनलाइज सेक्शन के स्टूडेंट हैं जो इस कैंपस में 7-8 सालों से सामाजिक न्याय की आवाज़ को उठा रहे हैं, वाइवा के अंदर जो जातिवाद होता है, जो फैकल्टी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन फैकल्टियों को हम लोग नाम बाहर पब्लिश करने के लिए लगातार जो कोशिश जो कर रहे हैं, उस पर जो है इस तरह से अटैक हो रहा है। तो आपको देखना होगा कि ये सरकार जहाँ पूरे देश में ऊना, दादरी और तमाम तरीके हो रहा है, उससे कहीं अलग जो है इस कैंपस में नहीं हो रहा है। और उस कैंपस में इस फासिस्ट अटैक को फेस करने वाले कौन है? वही लोग जो बाहर दादरी में फेस कर रहे हैं, वही लोग जो ऊना में फेस कर रहे हैं, वही बैकग्राउंड के लोग हैं जो यहाँ कैंपस के अंदर भी फेस कर रहे हैं। तो आपको ये सरकार लगातार नहीं चाहती कि एकेडमिक्स के अंदर बहुजन और बैकवर्ड सेक्शन के लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करें, वो लगातार उनको नहीं इस कैंपस से एक्सक्लूड करना चाहती है, हायर एजुकेशन से एक्सक्लूड करना चाहती है। I have one more thing. I have this from the office of Proctor, Statute 32 subclause 5, which says hunger strikes, dharnas, group bargaining, and any other form of protest by blocking entrance or exit of any of the academic and/or administrative complexes or disrupting the movements of any member of the university committee. So here, only thing which the VC is claiming, VC's administrative office is claiming that we disrupted the meeting, which is in the contradiction with the registrar's press release. So this statute is also should be considered illegal, which they served. This notice came overnight, and I don't think that it has any kind of fairness in it, and they were just trying to throw us out of the campus. That is the target. There are around 30-40 students, and they have selected the students from oppressed communities, SC, ST, OBC, Muslims, Dalits, Adivasi. They have just targeted us. इसमें देखिए दो बातें हैं जो एक्शन लिया गया है, मैं कहना चाहूँगा, बाकी जी तो कही दिए हैं। दो बातें हैं कि जैसे वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार बोल रहे हैं कि इन लोगों ने मीटिंग को डिस्टर्ब किया। हम कहते हैं जब पहले आप प्रेस रिलीज दे दिए अपने ऑफिस से, सरकारी ऑफिस से दे दिए कि प्रेस जो है हमारा मीटिंग ख़त्म हो गया, कंक्लूड हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि जो है आप लोगों ने मीटिंग आकर डिस्टर्ब किया। दूसरी बात, जहाँ तक एक्शन का सवाल है, ये लोग कह रहे हैं कि आपको वाइस चांसलर का सो मोटो पावर है, वो कोई भी एक्शन ले सकता है। हम कहते हैं नजीब वाले केस में आपको इतना दिन हो गया हुए, वहाँ क्यों नहीं सो मोटो पावर आपने लगाया? वहाँ के लोगों को तो आप नोटिस भेज रहे हैं, हॉस्टल चेंज कर रहे हैं, सो कोच भेज रहे हैं, हम लोग को बोल रहे हैं कि हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद अब आप इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, आप इंक्वायरी करिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसी कैंपस में अभी कमजोर सवाल चल रहा है कि जाति के सवाल पर तो आप पीछे हट जाते हैं। हम लोग के ऊपर एक्शन ले लीजिए। जब कम्युनल का सवाल आता है, जहाँ पर फंसते नजर आते हैं, वहाँ पर एबीपी के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी सरकार जहाँ से गवर्न हो रही है उन्हीं के अनुसार आप करना चाहते हैं। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं, आप लोगों के सामने कहना भी चाह रहे हैं, ये मुद्दा यही नहीं रहेगा, मुद्दा कैंपस के बाहर भी जाएगा और पूरे देश के विश्वविद्यालयों में इस तरीके की जहाँ जहाँ उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ जहाँ समस्याएँ आ रही हैं, उसको हम लोग वहाँ पर उस प्रशासन से, उस सरकार का, जहाँ भी स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके खिलाफ हम लोग अपना मोर्चा वहाँ पर अपना बढ़ाएंगे और आप लोगों के सपोर्ट से इसको आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। एक तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि कोई भी एडमिशन प्रोसेस में इंटरव्यू का मार्क्स, वाइवा का मार्क्स 15 मैक्सिमम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। अगर इस सवाल को लेकर के अगर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, तो हमको लगता है इसमें सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए, क्योंकि हम जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, जो संविधान की रक्षा करने का हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग कहीं से भी कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा देखिए कि इस कैंपस का, इस यूनिवर्सिटी का क्या इंटेलिजेंसिया है कि जो 11 लोग सस्पेंड किए हैं, जिसमें 2 एक्स स्टूडेंट बताया गया है, उनको ये भी नहीं पता है कि हम लोग स्टूडेंट हैं। तो ये इनके इंटेलिजेंसिया, इनकी समझदारी पर एक सवालिया निशान है।
अभी तो तमाम बातें रखी होगी कि जिस तरीके से वाइवा ओसे के मुद्दे को लेकर इस कैंपस में पिछले बहुत सालों से ये इशू उठाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ इशू ही बना था। और आज जब दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा छात्र एक वाजिब डिमांड के साथ बोल रहे हैं कि आप अब्दुल नाफे कमेटी का जो रिकमेंडेशंस है उसको भी लागू क्यों नहीं करें, और इसको लेकर जब एक प्रोटेस्ट जो एक डेमोक्रेटिक राइट है वो किया, तो जिस तरीके से इनको डायरेक्टली सस्पेंड किया। और बाकी लोगों ने भी कहा कि नजीब के केस में ये एविडेंसेस होने के बावजूद कि किस वजह से नजीब गायब है कैंपस से, उन छात्रों पे एक भी एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ एक टूटा फूटा मतलब मामूली हॉस्टल ट्रांसफ़र को हम एक्शन कैसे मान सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो वंचित तबकों से आए हुए लोग हैं उनके साथ किस तरीके से बर्ताव करना चाहता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है या यहाँ का प्रोक्टर रेक्टर वीसी को लगता है कि हमको सस्पेंड करने के बाद ये मुद्दा या ये लड़ाई यही के यही रह जाएगी, या किसी संगठन के जो लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है या लीडरशिप जो है, उनको टारगेट करने के बाद संगठन जो है ये मुद्दों को लेकर जो अभी इस कैंपस में डिस्कोर्स ये जो खड़ा हो रहा है, पिछले बहुत सालों से इस कैंपस में ऐसा डिस्कोर्स नहीं था जिस तरीके से होना चाहिए। तो अभी अगर इनको लगता है कि ये जो मुद्दे हैं, जो वंचित तबकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये गायब हो जाएंगे कैंपस के डिस्कोर्स से, तो उनका ये वहम है। ये लड़ाई जो है सामाजिक न्याय को लेकर, और जो वंचित तबकों के छात्र हैं, महिलाएं हैं, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं, इन सब के मुद्दे को लेकर ये लड़ाई और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी इस कैंपस में। और वाइवा ओसे के इशू को लेकर मैं एक बात सिर्फ जोड़ना चाहती हूँ कि कहीं पे भी जहाँ पे वाइवा का जो प्रोसेस है वो एक तरीके से जो लोग बात नहीं कर सकते हैं, जो बायोलॉजिकली म्यूट है, ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे कि वो ये जो सेंटर ऑफ हाई एक्सीलेंसेस है उसमें आने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, और वो पूरा प्रक्रिया उनको उसी वक्त यहाँ पे आने से रोक देता है। हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि अगर वाइवा ओसे का मार्क्स स्ट्रैटिफाइड हो जाता है, जो अब्दुल नाफे कमेटी भी बोलता है, तो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने के बाद और उसके साथ साथ वाइवा में अपीयर होने के लिए भी लोगों को मार्क्स मिल के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इवन फिजिकली चैलेंज्ड और जो बात नहीं कर पाते वो लोग भी। तो बस इसी के साथ मैं कहूँगी कि बाहर भी जो लोग इन मुद्दों को लेकर हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं, वो भी हमारे इस लड़ाई में शामिल हो जाए। जय भीम। जैसे जो भूपाली ने बात कही है, देखिए ये मामला जो है और इसमें इस तरह की कार्रवाई की हुई है समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये मामला जो है, ये जो जितने भी छात्र हैं उस दिन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कुछ ऐसी बातें कह रहे थे जो इस कैंपस में बहुत सालों तक उस ताकत से नहीं कही गई। पहली बात ये कि रिजर्वेशन जो है, संविधान कहता है कि रिजर्वेशन जो है ये आपका मूलभूत अधिकार है, लेकिन जेएनयू में दो तरह के आप अगर बड़े तौर पे देखिए सेंटर है, एक साइंस पकड़ लीजिए, एक सोशल साइंस, और एक तीसरा लैंग्वेज पकड़ लीजिए। इन तीनों को आप जब देखते हैं तो तीनों डिपार्टमेंट में एक जहाँ पे साइंस है वहाँ पे तथाकथित बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पे राइट विंग के लोग हैं, तो मान लिया गया कि ये लोग राइट विंग है, मनुवादी है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन ऐसे लागू नहीं होता है और छात्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जो अपने आप को यहाँ पे लेफ्ट क्लेम करता है, खास करके सीपीएस जैसा सेंटर है, यहाँ पे आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स जैसा सेंटर है, और तमाम तरह के इकोनॉमिक्स है, बाकी सेंटर है, वहाँ पे अगर आप हमने जो डेटा निकाला है वो डेटा ये कहता है कि रिजर्वेशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता ही नहीं सही तरीके से। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटर देखेंगे जहाँ पर ट्राइब फैकल्टी नहीं है, प्रोफेसर छोड़ दीजिए आप, फैकल्टी नहीं है, और वही सेंटर के जो बड़े बड़े प्रोफेसर है जो अपने आप को मार्क्सवादी कहते हैं या अलग अलग कोई भी आइडियोलॉजी से अपने को रंगते हैं, वो लोग उनके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। तो ये जो मसला हम उठा रहे हैं, ये मसला एक ऐसा मसला है जो ये यूनिवर्सिटी बनने के इतने सालों तक कभी इतना फोरफ्रंट में नहीं आया है। और मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे थे या अभी भी लड़ रहे हैं, ये इसीलिए इस लड़ाई के ऊपर इतना बड़ा जो अटैक है इसीलिए भी है क्योंकि हम इस कैंपस में जो नॉर्मलेसी बनी रही है, और नॉर्मलेसी किस चीज़ पर बनी हुई है कि लोगों के अधिकारों को दबाते हुए। मैं आपको कुछ एक दो केस बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे केस आपके सामने आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक दो केस बताना चाहूँगा। एक लड़की है, दलित लड़की, एक सिपॉट सेंटर में है, उसकी गाइड उसको एमफिल लिखने के पहले बोलती है कि तुम एमफिल तो लिख दो लेकिन पीएचडी यहाँ से नहीं करोगी, आई विल मेक श्योर कि तुम यहाँ से पीएचडी नहीं करोगी। अभी वो दलित लड़की जो अपने घर से जूझ के आ रही है, यहाँ पर पढ़ रही है, उसके पास ना पैसा है कि वो बाहर रोज कभी वकील को पैसा दे पाए, किसी को दे पाए। अभी मुझे पता है कि वो लड़की कहाँ जाए, किससे सहारा ले। और उस सेंटर के चेयरपर्सन
उसके प्रोफेसर, वो ये सभी लोग जो अपने आप को वामपंथी क्लेम करते हैं, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं। कल हमारे प्रोटेस्ट में एक वक्ता जो बोल के गए कि हम सोशल जस्टिस में बहुत बिलीव करते हैं। मैं सभी इस कैंपस में जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, जो सेंटर के चेयरपर्सन हैं या कोई भी पदाधिकारी है, उनको पूछना चाहता हूँ कि आपके सेंटर में कितने ST SC OBC माइनॉरिटी प्रोफेसर हैं, कितने टीचर हैं, और कितने को आप बाहर कर देते ये कहते हुए कि नॉट फाउंड सुटेबल। JNU के स्टूडेंट जो यहाँ से PhD करता है, जिसको आप गाइड करते हैं, जब वो आपके सेंटर में अप्लाई करता है, आप उसको कहते हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल। आपने खुद ने उसको गाइड किया हुआ है, आप खुद उसको डिग्री दिए हुए हैं, आप खुद ही उसका थीसिस चेक किए हुए हैं, और आप उसको कह रहे हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल। तो एक तरह का ये जो हेजेमनी इस कैंपस से बना हुआ है, और मैं कहूँगा सवर्ण हेजेमनी इस कैंपस से बना हुआ है, इसको तोड़ने की जब बात आती है तो इस तरह का एक कॉमन अटैक हम पर होता है। और हमारी जो डिमांड है उसको हमेशा किसी ना किसी तरीके, दोनों तरीके से, चाहे यहाँ का राइट विंग हो या अपने आप को जो लेफ्ट विंग क्लेम करता हो यहाँ पे, वो दोनों लोग बहुत ही सटीक तरीके से हमारी डिमांड को अभी तक ठंडे बस्ते में डालते आ रहा हुआ है। और इसीलिए आप सबसे अपील है कि जब मसला सस्पेंशन का है तो केवल मसला सस्पेंशन का नहीं है, मसला ये भी है कि जो बेसिक संवैधानिक राइट हम जो मांग रहे हैं उसको पूरा करने का मसला है। UGC का एक सर्कुलर आया मई 5, 2016 को। उसमें ये लिखा है कि रिटन एग्ज़ाम जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, और सब कुछ जो है, सब कुछ डिसाइडिंग फैक्टर जो है आपका वाइवा होगा। अगर मेरा ही केस में आप लोग देखा जाए देखेंगे, रिटन एग्ज़ाम में मुझे मिला 36 मार्क्स और वाइवा में मुझे दिया गया 3 मार्क। अब आप CPS का उस साल का 2014 का जो सिलेक्शन लिस्ट है आप एक बार उठा के देख लीजिएगा, कहीं आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 30 के ऊपर मार्क्स आया जैसे मुझे आया, और उन लोगों का वाइवा में मार्क्स आया 20 के ऊपर। अब मेरा वाइवा होता है सिर्फ 3-4 मिनट का, जिसमें वो लोग कोई सवाल ही नहीं पूछते, क्योंकि वो लोग समझते नहीं कि मतलब वो लोग अगर सवाल करेंगे तो मैं क्या समझूं। जबकि मैंने प्रपोजल लिख के गया, उसमें रेफरेंसेस है, हाँ, वो पूरा मेथोडोलॉजी के लिए लिख के गया, तब भी वो लोग सवाल नहीं पूछे। अगर UGC का वो रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होता है तो अभी तक जो डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा है वो तो बढ़ता जाएगा। उसको रोकने के लिए हम लोग उस दिन प्रोटेस्ट किए। हम नोटिस पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने प्रोटेस्ट पे बात करते हैं। जो हमारा प्रोटेस्ट था, जैसे राहुल भी ने मेंशन किया, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है और जिसमें 340 के आर्टिकल के हिसाब से OBC को रिजर्वेशन दिया गया, या शुरू से SC ST को रिजर्वेशन दिया गया, हमने उसकी मांग कर रहे थे उस मीटिंग में कि जो वंचित तबके से स्टूडेंट आता है, जिसके साथ आप उसकी जाति के आधार पर उसको टारगेट करके इंटरव्यू में 2 नंबर 3 नंबर 30 में से देते हैं, जनरल कैटेगरी का लड़का आता है और आपको 25 और 26 नंबर देते हैं 30, हम उस भेदभाव के खिलाफ वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये भेदभाव हम लोगों ने स्टूडेंट लेवल पे तो देखा ही है, इवन हमने फैकल्टी पे लेवल पे भी देखा है। जब फैकल्टी यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर एक भी OBC नहीं रहता है, तो क्या ये हमारा जो हम भेदभाव की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या ये जायज़ नहीं है? बिल्कुल जायज़ है, ये संविधान के हिसाब से है, लेकिन वही बर्दाश्त यहाँ के जातिवादी प्रोफेसरों को नहीं होता। यहाँ बहुत से प्रोफेसर प्रोग्रेसिव हैं जो लेफ्ट में भी हैं और मैंने उनको देखा है, लेकिन यहाँ लेफ्ट में जातिवादी प्रोफेसर है या राइट में जातिवादी प्रोफेसर है, तो क्या उनको नहीं लगता है कि जो वंचित तबके से लोग आया हुआ है, जिनका यहाँ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, जो क्या हमारी आवाज़ जो सही थी या गलत थी? हमारे हिसाब से पूरी सही थी। और हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये हम अपनी ये 11 स्टूडेंटों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमको आज अभी इसी वक्त यूनिवर्सिटी से निकाला जाए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लाखों स्टूडेंट जो गांव में बैठ के इंतजार करता है कि JNU का इस साल मैं एंट्रेंस दूंगा और इंटरव्यू दूंगा, उसका ये गला घोटेंगे, तब तक ये गला घोटेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक सस्पेंशन से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी लड़ाई जो है ये संविधान बचाने की लड़ाई है, वंचित तबके को बचाने की लड़ाई है। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और हम लोगों की बात आप आम जनता तक पहुँचाए, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। JNUSU में जो एक कन्फ्यूज़न है, मैं खुद अभी JNUSU ही हूँ। आई एम कन्वेनर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज एंड आई हैव एन ऑटोनोमस इन JNUSU कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन दैट आई कैन कॉल अ प्रोटेस्ट, कन्वेनर कैन कॉल अ प्रोटेस्ट। सो जो JNUSU जो वर्ड यूज हो रहा है, देयर आर 30 काउंसलर्स, 31 काउंसलर्स। सो JNUSU जो 4 लोग हैं ऊपर बैठे हुए ऑफिस बेरर्स, विच इज ISA SFI बेसिकली,
सो वो उनका स्टैंड अलग है और बाकी जो और उनके जो काउंसलर्स हैं, तो बेसिकली इट्स जस्ट सो कॉल्ड आईएसएफआई जो पार्टीज हैं उनका स्टैंड, बाकी जो हमारा जिस पार्टी से मैं आता हूँ एनएसयूआई से वगैरह, वी आर इन द सपोर्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ वाइवा मार्क्स, इनका स्टैंड कुछ अलग है। सो जिस दिन मैंने जनरल प्रोटेस्ट रखा था 23 तारीख को, जब मैंने कन्वीनर ऑफ एसएलएस, बापसा, ओबीसी फोरम, एसएफएस, इन लोगों ने प्रोटेस्ट कॉल किया, तो उस दिन जनरल सेक्रेटरी को भी कॉल किया गया, क्योंकि हमारा डिमांड था वन ऑफ द डिमांड था पार्ट ए रिकन्वीन किया जाए, और पार्ट ए रिकन्वीन होता तो उसमें ऑफिस बेरर को जाना होता है। तो मोहित पांडे ने फोन नहीं उठाया और शत्रुपा ने कहा कि देयर इज नो यूज इन गोइंग। सर जेएनयू आपके साथ है या उसके पदाधिकारी इस प्रोटेस्ट में या नहीं? अभी तक तो नहीं दिखे हमें। चलिए, जेएनयू इस सवाल के साथ तो इस कैंपस में वाइवा मार्क्स के सवाल पे लड़ ही रहा है। हाँ, एक बात है कि एक उदासीन रवैया जरूर रहा है। आज जेएनयू का प्रोग्राम है, जेएनयू का सस्पेंशन के खिलाफ इन सारे सवालों को लेकर के अगर आंदोलन है, हम उनके आंदोलन का स्वागत करते हैं। हमारे समर्थन में हमारे सवाल के साथ आंदोलन है, हम उनका समर्थन करते हैं। फिलहाल अभी तक थोड़ा उदासीन रवैया हम लोग को देखने को मिला है। आप लोगों ने प्रोफेसर की बात की, देश भर से आप लोग के बारे में और सब जगह लिखा जा रहा है जेएनयू में ठीक ठाक संख्या में एससी एसटी के प्रोफेसर हैं, ओबीसी कम है, माइनॉरिटी के प्रोफेसर, क्या उन लोगों से आपने संपर्क करने उससे क्या वो लोग आपकी इस लड़ाई में साथ हैं? देखिए, एससी एसटी ओबीसी प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर मतलब 3 लेवल पे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर जो लोग हैं उनकी एक संख्या है। अब देखिए, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लेवल पे ओबीसी का संख्या नहीं है। नहीं, वो आप लोग के साथ हैं, जो भी लोग हैं, ओबीसी के नहीं, एससी एसटी के प्रोफेसर हैं, माइनॉरिटी के प्रोफेसर हैं, वो इस पूरे बिल्कुल साथ में। आप लोगों की बातचीत हुई है उन लोगों से? हाँ, साथ में कई सारे प्रोफेसर साथ में हैं, और कुछ इस तरह के प्रोग्रेसिव प्रोफेसर जो इन कम्युनिटी से नहीं भी हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो प्रोफेसरों का जो संगठन है उनसे भी कोई बातचीत हुई है? नहीं, प्रोफेसरों के संगठनों का यानी जो जेएनयू है उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इन सारे सवालों को लेकर के उनका कोई स्टैंड नहीं है। वाइवा मार्क्स को लेकर के जेएनयू का कोई पोजीशन नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, अगर आप लोग के सस्पेंशन वापस नहीं लिया जाता है तो क्या आप लोग कोई लीगल एक्शन, कोई कानूनी प्रक्रिया के हिस्सा में जाएंगे या प्रोटेस्ट से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, ये हम लोग दरअसल हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, जो भी लोग सस्पेंड हुए हैं, और लीगल में जाना है या नहीं जाना है ये एक सेकेंडरी मामला है। इस पर हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। लेकिन ये जो मामला है ये सिर्फ सस्पेंशन मामला नहीं है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी तौर पर सस्पेंशन को नहीं देख रहे हैं। अभी भी जो 11 लोग सस्पेंड हुए हैं, अभी भी हमारा मानना है कि जो प्राइमरी सवाल है वो वाइवा मार्क्स को 30 से 15-10 करने का, माइनॉरिटी डिप्रिवेशन पॉइंट्स को लागू करने का, फी हाइक को वापस लेने का, और फैकल्टी और डायरेक्ट पीएचडी पोस्ट पर रिजर्वेशन को लागू करने का, ये मेरा प्राइमरी सवाल है हम लोगों का। और इसीलिए आंदोलन जो है इन सवालों को लेकर के है। हमारा जो मूवमेंट है वो सस्पेंशन के खिलाफ भी है, लेकिन प्राइमरी कंसर्न यही है। सस्पेंशन वापस नहीं होता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? ये हम लोग इसको राजनीतिक तौर पर देखते हैं, पॉलिसीज के तौर पर ये डिसीजन लिया गया है, और इसीलिए हम लोग इसका राजनीतिक मुकाबला करेंगे। लीगल में जाएंगे नहीं जाएंगे ये हम लोग बैठकर एक बार डिसाइड करेंगे। जो भी सवाल और जो भी आंदोलन जेएनयू में चल रहा है, जो भी शोषित तबके के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम इस देश के प्रगतिशील जनता और जो शोषित तबके के लोग हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि हमारे आंदोलन नहीं, शोषित तबके के हक के सवाल को लेकर के अपने अपने जगह पर आंदोलन तेज करें। यही हमारी एकता है, यही इस देश के अप्रेस्ड जो सेक्शन से आने वाले लोग और जो प्रोग्रेसिव सेक्शन से आने वाले लोग, उनके यूनिटी का एक हमको लगता है आंदोलन का एक ज़रूरत है। जो फासिस्ट और ब्राह्मणिकल रिजीम, चाहे वो किसी भी संगठन का ब्राह्मणवाद हो, लेफ्ट हो, राइट हो, इनके खिलाफ एक मुकाबला है। आप लोग साथ आएँ, आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं। मैं वीरेंद्र में जोड़ना चाहूँगा कि हम लोगों का जो आंदोलन है, ये आंदोलन रिजर्वेशन तक सीमित नहीं है। ये सवाल है रिप्रेजेंटेशन का। जो देश का 85% तबका है, जिस देश के 85% तबके को हायर एजुकेशन में आप डाटा उठा के देखेंगे तो 5 से 6% है। हमारी ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है, भारत देश के जो जनसंख्या है उसकी लड़ाई है। तो ये हमारा आंदोलन है, ये हम ही तक, ये 11 लोगों तक सीमित नहीं है। जैसा कि वीरेंद्र बोले हैं, हमारा ये आंदोलन पूरे हकों की लड़ाई है। जो देश में बैठा हुआ वंचित तबका है, जो प्रोग्रेसिव फोर्स है, जो हमारे साथ दे रहा है, और
मैं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि जिन तक हमारी बात नहीं पहुंची है उन तक आप लोग पहुंचाइए। हमें आप लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, अकेली हम 11 स्टूडेंटों की लड़ाई नहीं है। थैंक यू। Since many days in this campus, not just Viva OSE, but then last year if you see there were many protests when there was no reservation implemented in direct PhD admissions, even for SC/STs. On the other side, when most of the students were asked to leave the campus because their whatever they were writing in their thesis and all that, according to faculties, it was not up to the mark. So there are many students who have dropped out. So dropout issue is there. On the other side, no implementation of SC/ST reservation, and every time whenever there is a issue, last year when Rohit Vemula's institutional murder happened, and even before that, students from JNU have always participated and initiated the struggle to protest against MHRD, UGC. When when Smriti Irani was there in UGC, at that time also we see students from JNU and even otherwise have participated in all the struggles. So we see that there is this background which administration has found to target these students, because the students who are sitting here right now, these 11 students and those who are not here and even those who are with us, these all people have been participating in almost all the struggles against casteism, against this university administration's crackdown on students, and on the other side, this discourse which people are trying to, students are trying to get in this campus. So because of all this, we see there is this fascist and casteist attack on students by suspending them. And I would also like to join one more thing, that now in this campus, even burning a effigy of any particular state chief minister or even burning effigy of Manu has also become a problem. So we can see how each and every activity, what we call protest or registering voices by students, is taken as something problematic, not just in JNU but even in other campuses. So not only in universities but even the state, even the whatever UGC, MHRD and the entire society also thinks that students should only study and they should not participate in anything else. They should just focus on academics. So this mentality is also creating problems. So in case of Najib also, before that also, there were, like in media, many times people used to give this argument that these people are about 25, about 27 and still student. What kind of things they are doing? So this kind of mentality is also encouraging people sitting in administration and running universities to take such actions against students. And I would just like to add जो point आपने नेशनल दस्तक के लोगों ने पूछा था कि JNU के SC/ST प्रोफेसर्स या JNUSU है कि नहीं है आपके साथ, तो एक पॉइंट ये है कि इसी को अगर हम देखें, ये JNU के 11 लोगों का सस्पेंशन अभी का बात है, लेकिन SC/ST स्टूडेंट्स पे और बाकी स्टूडेंट्स पे टारगेट जो होता है और सस्पेंशन जो होता है, जो HCU में हुआ है, FLU में हुआ है और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का बात तो पिक्चर में आता ही नहीं है क्योंकि वो मुद्दा नहीं बन पाता है। तो ये सब होते हुए भी टीचर जो है, वो वंचित तबकों से आने वाले टीचर्स भी जिस तरीके से खड़ा रहने का उनका मंशा होता है उस तरीके से नहीं खड़े रह पाते, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम सभी को पता है कि SC/ST टीचर जो है उनको अगर आना भी है, और नॉट जस्ट इन यूनिवर्सिटी, अगर हम जो SC/ST IAS IPS और वट एवर ऑफिसर्स अगर भी देखें, तो जिस तरीके से पॉलिटिकल एक स्टैंड लेने का बात आता है इन इश्यूज़ पे, वो नहीं ले पाते। इसके लिए हम कतई नहीं मानते कि वो हमारे साथ नहीं है, कहीं ना कहीं ये लोग हमारे साथ हैं। अगर वोकल तरीके से और एकदम बाहर नहीं आ रहे हैं तो उनका कुछ लिमिटेशंस होगा, और वो हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस की वजह से नहीं आ रहे। रही बात JNUTA की, तो जैसे बाकी साथियों ने भी बोला और मैंने भी बोला कि ये जो मुद्दे हैं पिछले कई सालों से इस कैंपस में रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से JNUTA, अभी का JNUSU, पहले के JNUSU या उसके पहले भी जो JNUSU रहे हैं, एक उदासीनता के साथ ही इन मुद्दों को उन्होंने हैंडल किया है, और इसी का नतीजा है कि आज इन तबकों से आए हुए छात्र और उसके साथ साथ इन मुद्दों पे जो अपना एक समझदारी रखते हैं, वो इन तबकों से नहीं आने वाला भी छात्र इस तरीके से AC मीटिंग के बाहर एक तो पार्ट A रिकन्वीन करने की डिमांड के साथ, और दूसरा जब तक आप इन मुद्दों को ठीक तरीके से हैंडल नहीं करते हो तब तक आगे का पार्ट भी आप नहीं करेंगे, इसके साथ वहाँ पे उतरा था। तो मैं यही कहूँगी कि JNUSU या JNUTA का अभी का हालत देखते हुए कह सकते हैं कि वो होने से भी ना होने के बराबर है, लेकिन हम
सोचते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्योंकि सब छात्र उनके लिए एक समान होना चाहिए कि ये लोग भी अपना स्ट्रगल जो वो इनिशिएट कर सकें। एक सवाल और मैम, आप लोगों ने बार बार कहा है कि जो फोर्सेज है जैसे आरएसएस को लेकर या सब, तो क्या लगता है आप लोग को जो बीसी जो भी कर रहे हैं जेएनयू में, वो उसके लिए कहीं ना कहीं एमएचआरडी हो, सरकार हो या आरएसएस से उन पर दबाव है, या आज जो पूरा जो घटनाक्रम है उसमें भी आप लोग कोई भूमिका देते हैं? क्योंकि आपने प्रेस रिलीज में कहा कि फासिस्ट सरकार है इस तरह की बात है। बिल्कुल क्योंकि ये जो वाइस चांसलर की नियुक्ति जब से हुई है और जिस तरह के ये डिसीजन ले रहे हैं, ये पूरा का पूरा आरएसएस के कैरेक्टर से मैच खाता है। मुझे नहीं पता दिन में इनकी कितनी बातचीत मोहन भागवत से या तमाम आरएसएस के लीडरान से होता है, बीजेपी के लीडरान से होता है, लेकिन इनकी जो कैंपस में एक्टिविटी है, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो पूरा का पूरा फासिस्ट टेंडेंसी के साथ ये डिसीजन दिखता है। इसलिए मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी गवर्नमेंट और एमएचआरडी के गाइडलाइन पे ये वीसी, ये वाइस चांसलर एंटी स्टूडेंट, एंटी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज पॉलिसीज को लागू कर रहा है। एक सवाल और लीगल सवाल है, पता नहीं दलित छात्र भी हैं इसमें, क्या उनको लगता है कि अगर जातिगत भेदभाव वैसे हुआ है तो क्या वो लीगल तरीका अपनाएंगे? क्योंकि ये पनिशेबल ऑफेंस है कि किसी दलित के साथ आप जाति के आधार पे भेदभाव करें। ओबीसी के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है, लेकिन दलित के पास है, तो क्या, और आदिवासी के पास है, तो क्या वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उपयोग करेंगे? ये जो लीगल तरीका या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है SC/ST एक्ट फाइल करना, ये सभी ऑप्शंस हैं। अभी फ़िलहाल जो पॉलिटिकल बैटल या जो प्रोटेस्ट के तरीके से या एक सब लोग इकट्ठा होके जो कर रहे हैं अभी, तो उसी में ही फोकस किया जाएगा। और आगे अगर SC/ST छात्र इसमें जो है वो भी अगर अपना जो क्या बोलते हैं उसको SC/ST एक्ट फाइल करना चाहता है, तो वो भी सिर्फ उन 3 या 4 छात्रों का डिसीजन नहीं होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सस्पेंडेड स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा बैठ के एक यूनानिमस डिसीजन लिया जाएगा उसके ऊपर भी, क्योंकि हम लोग इक्वली अफेक्टेड हैं। है जातिगत भेदभाव है, दलित ओबीसी छात्रों के साथ है जातिगत भेदभाव, और बट उसके साथ साथ अगर ओबीसी स्टूडेंट्स के पास ये ऑप्शन नहीं है तो उनका भी सस्पेंशन या जो इश्यूज हमने उठाए हैं वो डील करने के लिए इकट्ठा एक साझा स्ट्रगल किस तरीके से किया जाएगा, इसी के ऊपर बातचीत करके हम डिसाइड करेंगे आगे के दिशा। दलित कैमरा के लिए मैं एक लाइन हिंदी में बोल सकता। जस्टिस फॉर रोहित मूवमेंट में जेएनयू के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और रोहित का जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ उसके बाद तो पार्टिसिपेट किया ही, लेकिन जब रोहित का सस्पेंशन हुआ था एसयू में इंस्टीट्यूशनल मर्डर के पहले, उस सस्पेंशन के सॉलिडारिटी में भी यहाँ के दलित स्टूडेंट अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे नाइट विजिल का कॉल दिया था। और इसलिए क्योंकि ये बात यहाँ के जो इंडिविजुअल दलित स्टूडेंट जैसे जितेंद्र कुमार करके स्टूडेंट ने नाइट विजिल का कॉल दिया था, तब जब ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर के पहले जब रोहित का सस्पेंशन और उनके 5 साथियों का सस्पेंशन हुआ था, उनके समर्थन में, उनकी सॉलिडारिटी में।